Hello friends, I am Vivek Pal and here we will discuss the exam DFCCIL 2018. So we have already done the part 1 of this video in which we have discussed the question up to fluid mechanics. So those people who have not gone through that video, the link is given in the description of the part 1. Okay. So in this video, we will move further from the soil mechanics. So let's begin the soil mechanics. Question number 1. The relative density of granular soils is given by the relation and 4 options are given. Simple question है, formula based है, सबको याद भी होगा ये. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है जैसे कि हम डेंसिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं. एंड द फॉर्मूला इज E max minus E minimum upon E max minus E minimum. Okay, that this E जिसके सब स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है उसे नेचुरल E कहते हैं, नेचुरल वॉइड रेशियो. एंड द अनदर फॉर्मूला फॉर दिस इज 1 upon gamma d minimum minus 1 upon gamma d minimum minus upon 1 upon gamma d max. इसे याद करने के लिए E is inversely proportional to the gamma d, that is dry density. So the void ratio to be maximum, the gamma d will be minimum. Okay. कभी कभी क्वेश्चंस में E मैक्सिमम और E मिनिमम की वैल्यू भी पूछ ली जाती है अक्सर. तो इसकी जनरल वैल्यूज है 0.91 एंड 0.35. ओके, सो आंसर विल बी फोर्थ वन, E max minus E and E max upon E minimum. Also percentage, it is calculated in percentage, so it is multiplied by 100. There is another thing, that is the classification on the basis of dr, that is relative density. कभी कभी क्वेश्चंस में ये dr की वैल्यू गिवन होती है और पूछा होता है which type of soil is this. Okay, we also remember this table. So move further to next question. The coefficient of curvature from the grain size distribution curve is given by coefficient of curvature, that is CC. CC का हमें सीधे से फॉर्मूला पूछा हुआ है. Don't worry about this question. CC, the coefficient of curvature is D30 square upon D60 into D10. फॉर्मूला बेस्ड था. सो ऑप्शन में दिखते हैं, द सेकंड वन इज द करेक्ट वन, सेम एज इट इज लिखा हुआ है ऐसा. एंड द जनरल वैल्यू ऑफ CC is lies between 1 to 3 for sand and gravelly soils. I have not written here, so put this in your notes. It is, this value is for sand and gravelly soil. Okay, next question. The Moore column criterion, which is defined by the shear strength consisting of effective normal stress sigma dash, cohesion C dash and effective stress angle of friction phi dash is given by. ये भी फॉर्मूला बेस्ड है. मूर कॉलम फेलर क्राइटेरिया की जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसी की इक्वेशन हमें बतानी है, जो कि टाउ इक्वल्स टू सी डैश प्लस सिग्मा बार टेन फाइव डैश होती है. ओके, और ये इसका ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, उसके अकॉर्डिंग ये कर्व बनता है. इसका इंटरसेप्ट विल बी सी डैश एंड द स्लोप विल बी फाइव डैश. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन द फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. S equals to C dash plus sigma bar sigma dash 10 phi dash. Okay, what is the reason for preferring triaxial test over direct shear test? ट्राईएक्सियल टेस्ट को हम क्यों प्रेफर करते हैं डायरेक्ट shear टेस्ट के ऊपर? उसके अकॉर्डिंग हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो इसे ऑप्शन से करते हैं. The accurate measurement of pore water pressure and change in volume is not possible during the test.
ओके, जबकि इसमें पॉसिबल होता है हम पोर वाटर प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज इन वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं. सो दिस वन इज द रॉन्ग वन. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज नॉन यूनिफॉर्म. ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में जितनी भी स्ट्रेसेस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं. सो इट इज ऑल्सो द रॉन्ग वन. द टेस्ट प्रोवाइड्स बेटर कोरिलेशन फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. टेस्ट बेटा कोरिलेशन तो देता है इफेक्टिव स्ट्रेस एंगल का, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेफरिंग ट्राइएक्सियल टेस्ट ओवर डायरेक्ट शियर टेस्ट. So this would be this will not be the correct one. The test can be performed under all three drainage conditions with complete control. Okay, ये तो करेक्ट है. डायरेक्ट सीयर टेस्ट में हम लोग पोर वाटर प्रेशर और ड्रेनेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट सीयर टेस्ट को हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. According to standard test method ASTM D4318, the moisture content, the liquid limit of the soil is determined by Casagrande liquid device at which a groove closure of dash occurs at dash blows. ओके, ये टेस्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना. और ब्लोज हमें पता है 25 होते हैं और ग्रूव होता है 0.5 इंचेस का, अप्रॉक्सीमेटली 12.7 mm. ओके, तो फोर्थ वन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा. ये कुछ सारी लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग इसमें भी लिखा हुआ इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्लोज द डिस्टेंस ऑफ 0.5 inches that is approximately equal to 12.7 mm. Okay, and 25 blows. So answer will be the fourth one. This is the diagram for this. What will be the dry unit weight in kilonewton per meter cube for a saturated soil given that the moisture content W equals to 35% and specific gravity of soil GS equals to 2.5. सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें W दे रखा है वाटर कंटेंट एंड GS 2.5 दे रखा है. सो गामा डी का फॉर्मूला होता है GS गामा W अपॉन 1 प्लस E. ओके, और सॉइल हमें सैचुरेटेड दे रखी है इसमें, हेयर सैचुरेटेड सॉइल है, तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी एस, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट ई. ई की वैल्यू आ जाएगी 0.35 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 0.875, जैसे कि हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. ओके, जिससे कि हमारा गामा डी निकल जाएगा 2.5 इंटू 9.81 अपॉन 1.875 would come out to 13.08 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. आंसर में मैच नहीं कर रहा है, मतलब आंसर में गलत दे रखा है. दे 13.08 आएगा, इसमें 12.08 दे रखा है. So which one of the following is a demerit of a triaxial test? Triaxial test की हमें demerit बताना है. So this question to be done by the options. The specimen is free to fail on the weakest plane. It is the merit, क्योंकि वीकेस्ट प्लेन पे फेल हुआ तो ये सही बात है. सॉइल जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक है वहाँ पे फेल हो रहा है स्पेसिमेन. इट इज़ अ मेरिट नॉट डीमेरिट. The pore pressure and volumetric changes can be measured directly. It is also the merit. The stress distribution on the failure plane is uniform.
इट इज आल्सो द डीमेरिट, जितना यूनिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा सटीक टेस्ट हो पाएगा। The consolidation of the specimen is isotropic in the test but anisotropic in the field. Okay. फील्ड पे क्या कंडीशंस होती हैं, जितने भी प्लेन्स हैं उनमें अलग अलग तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि किधर स्टिफ सॉइल है, कहीं पे थोड़ी लूज सॉइल होगी, अलग अलग टाइप के प्रेशर्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फील्ड पे कंडीशंस होती हैं वो एनासोट्रॉपिक क्रिएट हो जाती हैं, जबकि हमने जो टेस्ट हुआ है टेस्ट में हमने आइडियल कंडीशंस क्रिएट करी हैं, तो उसमें आइसोट्रॉपिक कंडीशंस होती हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इट इज द डीमेरिट ऑफ ट्राईएक्सियल टेस्ट। लाइम स्टेबलाइजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग। लाइम स्टेबलाइजिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, करेक्ट वन विल बी द क्लेज। क्लेज के लिए हमें यूज करते हैं, जिससे कि लाइम से हम क्या करते हैं, जो जितने भी डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमें क्या करते हैं, लाइम की वजह से हम फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर्स में चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो सॉइल का जो जितना भी वॉल्यूम चेंजिंग कंडीशंस हैं वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस sigma z of the soil just below the load point is given by dash, where z is the vertical distance between point load and polar stress and q point load. Okay, इसमें बूसिनेस्क थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा जेड की जो वैल्यू होती है 3q/2πz² इंटू 1/1 + r/z का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 होता है, जिसमें कि हमें क्वेश्चन में जस्ट बिलो द पॉइंट पूछा है, जस्ट बिलो द लोड पॉइंट। ओके, तो आर की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, 0 पुट करेंगे हम, जिससे कि 3q/2πz² आ जाएगा। और हम इसे सॉल्व करेंगे 3/2π को, तो इसकी वैल्यू मोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0.477 आएगी। सो द आंसर विल बी this question can be done also by the units also. The q/z² is written here only. Okay, okay, so the fourth one is the correct answer. According to Rankine formula, the minimum depth of the foundation where h, p and gamma and phi are given. Okay, Rankine theory के अकॉर्डिंग मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होती है, सो df इक्वल्स टू q0/gamma 1 - sin phi अपॉन 1 + का sin phi का होल स्क्वायर, और इट शुड बी ग्रेटर देन द 0.5 मीटर। सो ऑप्शंस में थर्ड वन इज द करेक्ट, जो कि मैच कर रहा है एक्जैक्टली, वेयर इसमें p से डिनोट की गई है और इसमें q0 से डिनोट किया गया है। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। If the capillary rise in a soil A with an effective size of 0.02 mm was 60 centimeter, then what would be the capillary rise in the similar soil B with an effective size of 0.04 mm? ओके, इसमें इफेक्टिव साइज D10 कहते हैं, हम D10 से डिनोट करते हैं इसे। तो इफेक्टिव साइज दे रखा है 0.02 और उसके अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कैपिलरी राइज। ओके, और सेम कंडीशंस में बी सिमिलर सॉइल है जिसमें वैल्यूज चेंज कर रखी हैं, हमें से पूछा हुआ है कैपिलरी राइज कितना होगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिलरी राइज का सॉइल्स में H इक्वल्स टू C/ED10। ओके, एक और फॉर्मूला होता है 0.03/0.2 D10। यूनिट्स आर गिवन। So formula के अकॉर्डिंग H is inversely proportional to 1/D10। ओके, तो जितनी वैल्यूज दे रखी हैं उनको हम पुट करेंगे। 60 दे रखा है, 60 सेंटीमीटर एंड 0.02 पहली कंडीशंस में, और दूसरी कंडीशन में दे रखा है H तो जो हमें निकालना है इंटू 0.04। ओके, so that we can find out the value of H which comes out to 30 centimeter. Okay, the one will be the correct answer.
यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैश क्लासिफिकेशन। यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ये लिखा है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन IS 1498। ओके, एंड आस्थो सिस्टम हाईवे रिसर्च बोर्ड के द्वारा दिया गया था। ओके, द लिक्विड लिमिट is determined by from Casagrande apparatus. The apparatus consists of a semi-spherical brass cup that is repeatedly dropped into a hand hard rubber base from a height of। ओके, सो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। मतलब जो हम कैसेग्रांडे apparatus में उसमें 25 ब्लोज देते हैं तो उसमें उसे रिलीज करते हैं थोड़ी हाइट पे से, तो वो हाइट हमसे पूछी हुई है कितनी होती है? इट इज 10 mm। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। फॉर फ्लो थ्रू सॉइल्स द फ्लो इज लैमिनार व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज। सॉइल्स के केस में लैमिनार कंडीशंस के लिए रेनॉल्ड्स नंबर पूछा हुआ है हमें। ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें कि रेनॉल्ड्स नंबर मैंने सभी के लिए लिख दिया है। पाइप, पैरेलल प्लेट्स, सॉइल, ओपन चैनल फ्लो। पूरी सिविल इंजीनियरिंग में ये चार ही के केस में रेनॉल्ड्स नंबर पूछा जाता है अधिकतर। लैमिनार के लिए ये लेस देन दिस 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 वैल्यू, एंड ट्रांजिशन के लिए इस रेंज में होना चाहिए, एंड टर्बुलेंट के लिए इस रेंज से ऊपर होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा हुआ था हमें सॉइल के बारे में। सॉइल के केस में लैमिनार के लिए लेस देन 1 होता है, सो लेस देन यूनिटी। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। For a soil, if the sensitivity value varies from 2 to 4, then such a soil in these soils are classified as। ओके, सेंसिटिविटी चार्ट का ये वैल्यूज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सॉइल को क्लासिफाई कर पाते हैं सेंसिटिविटी के बेसिस पे। सेंसिटिविटी के बेसिस पे तो वॉल्यूम वैल्यू हमें कहाँ दी थी? 2 से लेके 4 के बीच में। 2 से लेके 4 में सॉइल होती है नॉर्मली सेंसिटिव। ओके, क्वेश्चंस में नॉर्मली नहीं लिखा है लेकिन मोस्ट अगर क्लोजेस्ट चीज देखी जाए इसमें, लिटिल तो बहुत कम हो जाएगा, सेंसिटिव तो 4 से 8 होता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। सो आंसर विल बी द मॉडरेटली सेंसिटिव। सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है QU अपॉन QU। QU डेट इज अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए न्यूमरेटर में, एंड मोल्डेड के लिए डिनोमिनेटर में। The load per unit area of the foundation at which shear failure in soil occurs is called the। फाउंडेशन के केस में लोड पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। सो सिंपल है ये तो, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द फाउंडेशन। ओके, तो सेकंड वन इज द करेक्ट वन। अकॉर्डिंग टू Tajagi bearing capacity theory for foundation, the foundation is shallow if। सैलो फाउंडेशन के लिए सिंपल सा है, सैलो फाउंडेशन के लिए DF/V की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, सो दैट दिस रिजल्ट कैन बी डेराइव्ड। DF should be less than equals to the width of the foundation। Okay, so depth is less than or equals to width। Okay, in modified Proctor test for compaction of the soils, the mass of the rammer is of dash and dropped at the height of। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, इसमें पूछी गई हैं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में। ये मैंने दोनों प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की दोनों की वैल्यू लिख दी है। हैमर 2.6 kg होता है, इसमें 4.9 kg होता है। हमसे मॉडिफाइड का पूछा हुआ है, सो 4.89 kg। हाइट ऑफ फॉल 310 mm होती है प्रॉक्टर टेस्ट में, एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में 450 mm होती है। ओके, सो आंसर विल बी
फोर्थ वन, सॉइल कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, सो अब सर्वे पे करते हैं। इन द थर्ड लाइट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप in the vertical plane indicates this axis के about this telescope will rotate। इस axis को हम क्या कहते हैं? That is this is the telescope and this is the axis about which the telescope is rotating. So this axis is known as horizontal axis. Okay, so answer will be horizontal axis. What is the radius of 1 degree curve? 1 डिग्री कर्व की रेडियस कितनी होगी? रेडियस का फॉर्मूला होता है 1719 अपॉन डी। ठीक है, यहाँ से रेडियस मीटर्स में निकल के आती है। डी इज गिवन फॉर 1 डिग्री कर्व, सो डी इक्वल्स टू 1 डिग्री, आर विल कम आउट टू बी 1719 मीटर। आंसर विल बी 1719। द परमिसिबल एरर ई for the precise labeling type with the distance d in kilometer is given by। ओके, प्रिसाइज लेवलिंग के केस में परमिसिबल एरर कितनी होती है? सो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे चारों लिख दी हैं, रफ लेवलिंग के लिए, ऑर्डिनरी लेवलिंग के लिए, एक्यूरेट के लिए और प्रिसाइज के लिए। सो हमसे क्वेश्चन में किसी कौन सी पूछी है? द प्रिसाइज वन। सो ई इक्वल्स टू पॉइंट प्लस माइनस 0.006 अंडर रूट डी d in kilometer. So fourth one will be the correct one. Okay, now move towards BMC, building material construction. The first question is Mohs scale. मोर लिखा है यहाँ पे। The Mohs scale is used to determine depth of the stone. किसके लिए होता है Mohs scale? हार्डनेस के लिए। सिंपल, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ। And this chart is usually asked in the exams, so learn this chart table. Diamond, corundum, topaz, quartz, orthoclase, apatite, fluorite, calcite, gypsum, टाक। और नीचे से इसकी टाक से 1 स्टार्ट होता है, सो 1 to 10, और ये डायमंड की तरफ हार्डनेस इंक्रीज होती है इसकी तरफ। ओके, द प्लेन टेबल सर्वे वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म, ट्रावर्सिंग, ट्रांगुलेशन, रिकनेसेंस। सो ट्रावर्सिंग में लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं हम, एंड आफ्टर दैट along with angular measurements भी लेते हैं। So linear measurements are taken with the help of chain and angular are by theodolite। ऐसा प्लांट टेबल में कुछ होता नहीं है, so traversing is wrong one। ट्रायंगुलेशन में लीनियर मेजरमेंट्स ली जाती हैं, दैट इज चेन सर्वे में होता है ज़्यादातर ट्रायंगुलेशन, so this will also the wrong one। रिकनेसेंस इज फर्स्ट सर्वे जो हम सबसे पहले करते हैं, रफ सर्वे। सो आंसर विल बी द पैरेललिज्म। हम रेज को प्रोजेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हम प्लांट टेबल सर्वे करते हैं। सो आंसर पैरेललिज्म होगा इसका। सो द प्रिंसिपल केमिकल कंस्टिट्यूएंट present in the argillaceous rocks is these are the 3 rocks: argillaceous rocks, calcareous rocks, siliceous rocks. Argillaceous are based on the alumina, that is clay based products. Calcareous is based on the calcium based product, and the siliceous rocks are based on the silica. So argillaceous is asked in the question, so answer will be the alumina, that is Al2O3. Okay, lime, dolomite are belongs to calcareous,
and SiO2 is belongs to siliceous. Which one of the following statements is incorrect in case of stiffness of wood? Okay, ऑप्शन से करते हैं इसे. The wood is not a stiff material. वुड स्टिफ नहीं होता है, ये तो गलत बात है. डेंस वुड इज स्टिफर. डेंस वुड इज स्टिफर. स्टिफ होती है डेंस वुड. अच्छा, आंसर में इनकरेक्ट पूछा हुआ है. द डेंस वुड इज स्टिफर. ग्रीन टिम्बर इज स्टिफर देन व्हेन सीजनड. स्टिफर क्वेश्चन में कुछ गलत सा है इसमें. ग्रीन टिम्बर इज स्टिफर देन व्हेन सीजनड. सीजनिंग करने के बाद तो ग्रीन टिम्बर ज़्यादा, ग्रीन टिम्बर से जो सीजन टिम्बर है वो ज़्यादा स्टिफ होती है. तो ये आंसर तो इनकरेक्ट होना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन. एंड वुड के अंदर स्टिफनेस होती है, सो दिस विल आल्सो द. क्वेश्चन में इसमें गलत है कुछ. Move on to the next question. Generally, the swelling of wood along the length of fibers ranges from 6 to 12%, 0.1 to 0.8%, 13, 15, 3 to 5%. Swelling of the wood along the length of the fibers. Okay. Swelling of the wood. फैक्चुअल क्वेश्चन है ये तो. 0.1 टू 0.8% तक होता है स्वेलिंग. और अगर हमें ऑप्शन से करना हो तो स्वेलिंग अलोंग द लेंथ सबसे कम होती है. सो फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट द स्वेलिंग विल बी less than 1%, and it is given in the option 2. The test which is not used to measure the workability of concrete is called dash test. Okay, the compacting factor test workability के लिए होता है. VB test also for the workability of concrete. Leach ateliers soundness के लिए होता है. And slumpage also for the workability. And in question the question is asking about the not used for the workability. So answer will be the leach ateliers. It is used for the soundness of the cement. According to IS 456-2000, the slump value in mm of the concrete used in ordinary RCC work for beams and slabs are in the range of. Okay. नॉर्मल आरसीसी वर्क में जो वैल्यू होती है 50 से 120 के आसपास होती है. मास कंक्रीटिंग में थोड़ी स्टिफ रखते हैं हम लोग पेस्ट को, तो 25 से लेके 50 तक होता है. ओके, सो 25 and 25 to 50 and 20 to 30 आर वेरी स्टिफ पेस्ट. सो ये तो एलिमिनेट हो गए. एंड देन 75 to 150. 150 is the range of pumpable concrete. ओके, सो ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यू लिखी हुई है. सो ऑप्शन विल बी द 50 to 100. और इसके बेसिस पे करें तो अभी ये 50 to 100 ही आ रहा है. ओके. वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वाटर टू सीमेंट बाई वेट होता है. सिंपल सा है तो ठीक है. ए मेजर फैक्टर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. ठीक है, ये तो बताइए अब्राहम लॉ के अकॉर्डिंग. The water absorption of a good brick should not exceed dash of its dry weight when kept immersed in water for 24 hours. Okay, फर्स्ट क्लास ब्रिक में 20% होता है. ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ये लिखा हुआ है फर्स्ट का 20%, सेकंड का 22 एंड थर्ड का 25%.
Okay, this is the maximum water absorption when immersed for 24 hours. Okay, which of the following is not the objective of seasoning timber? ऑब्जेक्टिव होता क्या है सीजनिंग का? रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट टू द डिजायर्ड वैल्यू। जितना हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है साइट पर, उसके अकॉर्डिंग हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि आफ्टर दैट वी विल यूज उसमें अनडिजायरेबल श्रिंकेज और वॉर्पेज ना हो। ठीक है, उसके बेसिस पे अगर मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। इसमें नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, ये करेक्ट वन है, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना हमें। रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट्स इन टिम्बर। ओके, टिम्बर में डिफेक्ट्स तो रिमूव होते हैं सीजनिंग की वजह से, पर नेचुरल डिफेक्ट्स की जब बात करें हम, नेचुरल डिफेक्ट्स में नोट्स एंड सेक्स आते हैं। ठीक है, तो उन सबको रिमूव सीजनिंग से नहीं होता है। सीजनिंग से हम उन डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं जो कि टर्माइट अटैक्स की वजह से होते हैं और वॉरपेज की वजह से होते हैं, श्रिंकेज की वजह से जो होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे नेचुरल डिफेक्ट्स की अगर बात की जाए, देन इट विल बी द इनकरेक्ट वन। ठीक है, एंड श्रिंकेज वॉरपेज ये भी कम होता है, एंड स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी ये इंक्रीज होती है। सो ये दोनों करेक्ट वन है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट निकालना था, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, सो सेकंड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। So next we forward to irrigation. The spacing between the adjacent spurs in river training work is generally kept between dash times the spur length. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। लगभग डबल के आसपास होता है। देन 2 to 2.5 इसका करेक्ट वन आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। एंड द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज constructed when a full supply level FSL of a canal is much higher than HFL of the stream, which in turn is lower than the bottom of the canal trough. Such a structure is called. Okay.